welcome to our BIMT YouTube channel. So students, this is a lecture of FM03. So today we will start with our next unit, that is unit 2. So today we will discuss our topic in unit 2, that is sectorial financial institution. So आज हम unit 2 start करेंगे FM03 की और इसमें हम topic पढ़ेंगे sectorial financial institutions. तो start करते हैं. So All India Financial Institutions, that is AIFI, its full form is All India Financial Institutions, is a group composed of development finance institutions and investment institutions. All India Financial Institutions एक group है जो mainly composed है development finance institutions and investment institutions that play a main role in financial market. तो All India Financial Institution एक group है जिसके अंदर दोनों तरीके की institutions आ जाते हैं, development financial institutions and investment institutions, and as the name development means all over development of financial part, and investment means all over investment part of finance. So this is the very much important part, and these two institutions play a main role in our financial markets, also known as financial instruments. तो ये जो दो मेन institutions हैं इनको हम financial instruments के नाम से भी जानते हैं. The financial institutions assist in the proper allocation of resources. अब ये जो main development institution and investment institutions हैं, ये financial institutions हैं और ये main work क्या करते हैं, role क्या play करते हैं? They assist in proper allocation of resources. Proper allocation of resources के लिए help करते हैं. Sourcing from businesses that have a surplus and distributing to others who have deficits. और जिनके पास सरप्लस है वो डेफिसिट्स के लिए या डेफिसिट जिनको हो गया बिजनेसेस में उनकी हेल्प करते हैं. नेक्स्ट, दिस आल्सो असिस्ट विद इंश्योरिंग द कंटिन्यूड सर्कुलेशन ऑफ मनी इन द इकोनॉमी. तो कैसे डेफिसिट की हेल्प होगी? व्हेन देयर इज अ कंटिन्यूअस सर्कुलेशन ऑफ मनी इन द इकोनॉमी, तभी सरप्लस वाला डेफिसिट की हेल्प कर सकता है. पॉसिबली of greatest significance, the financial institutions act as an intermediary between borrowers and final lenders. So financial institutions as an intermediary में role play करता है between borrowers and final lenders, जो पैसा लेने वाला और जो पैसा देने वाला है. Providing safety and liquidity also. The main function of these financial institutions is to provide safety and liquidity also. This process subsequently ensures earnings on the investments and savings. और ये mainly क्या इन्वॉल्व करेगा अपने अंदर? इन्वेस्टमेंट्स और सेविंग्स इन्वॉल्व करेगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स हमेशा ही फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का पार्ट है और रहेगा. There were 4 institutions regulated by Reserve Bank of India as All India Financial Institutions. यहाँ पे नीचे 4 institutions के नाम दिए गए हैं जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेट करती है एज ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के नाम से. वो 4 institutions है कौन सी? पहला एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज एक्सिम बैंक. देन नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इट इज नाबार्ड. देन सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, एंड लास्ट वन इज NHB, National Housing Banking. I have mentioned their short forms and full forms in your notes so that you can recognize or you can know about the full forms of this particular banks. So these are the main 4 institutions which are regulated by Reserve Bank of India as well as All India Financial Institutions. They are Export Import Bank of India, that is Exim Bank, National Bank for Agriculture and Rural Development, that is NABARD, then SIDBI, Small Industrial Development Bank of India, then NHB, National Housing Bank. So these are some banks which comes under this. So now we will discuss about functions of sectorial financial institution. हम मेन टॉपिक sectorial financial institution पढ़ रहे हैं. इसके अंदर अब हम इसके functions पढ़ेंगे. Direct assistance. Direct assistance means direct help provide करना. Helps the industrial sector by granting project loans, underwriting of and direct subscription to industrial securities such as shares and debentures, soft loans and technical development funds. तो sectorial financial directly भी assist करता है, directly help करता है इंडस्ट्रियल सेक्टर के किसी भी प्रोजेक्ट में
अगर नीड है फाइनेंशियल हेल्प की तो डायरेक्टली असिस्टेंस में डायरेक्ट हेल्प करना टू डिफरेंट ट्रेड्स और इंडस्ट्रीज. Next is coordinating function. So these institutions are also playing a coordinating function of such as coordinating function किनके साथ, other financial institutions के साथ, जैसे कि ICICI, IFCI, LIC, GIC, etc. Mainly for keeping in mind the development part of these institutions. Next is indirect assistance. तो पहले direct assistance थी, दूसरा point coordinating functions, then indirect assistance. Indirect assistance किनको देगा? To small and medium enterprises by granting loans. Small और medium enterprises को indirect assistance देगा in the form of loans. It also refinances industrial loans for SFCs और साथ ही other industrial refinance करता है industrial loans. SFCs, state financial corporations, SIDCs, state industrial development corporations, commercial banks, IRBs, along with the billing related to sale of indigenous machinery. तो indirect assistance provide करता है small and medium enterprises को और provide किस तरह की loans की facility provide करता है SCA, SFCs, SIDCs, commercial banks and IRBs. Next है raising funds from international money market. Next role is or function is raising funds from international market से भी funds raise करने की कोशिश करता है. So this all in our sectorial financial institutions. Sectorial financial institutions में हमने financial institutions की बात करी, ध्यान में रखकर डेवलपमेंट पार्ट को और इन्वेस्टमेंट पार्ट को, और मेनली 4 सेक्टर्स में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस डिवाइडेड है और उसी तरीके से वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं, उसी तरीके की फंक्शंस प्ले कर रहे हैं. डायरेक्ट असिस्टेंस भी दे रहे हैं, इनडायरेक्ट असिस्टेंस भी दे रहे हैं और उसके साथ साथ कोऑर्डिनेटिंग रोल्स भी प्ले कर रहे हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट, दिस इज अ वेरी स्मॉल टॉपिक एंड दिस इज ऑल अबाउट आवर सेक्टोरियल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. तो आई थिंक ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट टॉपिक पे आज हम मूव करेंगे एंड दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इट इज नाबार्ड. सो व्हाट इज नाबार्ड? आज हम नाबार्ड जो टॉपिक है इसके ऊपर बात करेंगे. इसकी फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट. So what is NABARD? The Indian economy post independence was an agricultural economy. Before independence जो इंडियन इकोनॉमी थी वो एक एग्रीकल्चरल इकोनॉमी थी. मेनली सब लोग मोस्टली एग्रीकल्चर पे बेस्ड थे, उसी से उनका सारा लाइफ को या नीड्स बेसिक को फुलफिल कर पाते थे. बट आफ्टर इंडिपेंडेंस द फोकस वाज मेनली ऑन मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेड सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी. पहले इंडिपेंडेंस में सारा का सारा मेन फोकस एग्रीकल्चर इकोनॉमी पर ही था. आफ्टर इंडिपेंडेंस मेनली फोकस किस साइड मूव हो गया? मैन्युफैक्चरिंग साइड पे. मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेड सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेड सेक्टर की साइड मूव ऑन हुआ टू बूस्ट डेवलपमेंट को, इंडियन इकोनॉमी को और डेवलप करने के लिए. हाउ मेजर पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन इन इंडिया लिव इन रूरल सेक्टर एंड सो इट इज इम्पोर्टेंट टू डेवलप रूरल फाइनेंशियल एक्टिविटी. आप सब भी जानते हैं कि मेजर पार्ट ऑफ पॉपुलेशन जो इंडिया की है वो मेनली रूरल सेक्टर में है, आज भी रूरल सेक्टर में है. इसीलिए रूरल सेक्टर का डेवलप होना बहुत जरूरी है, जिसके लिए मेन जो गवर्नमेंट ने सेटअप किया है नाबार्ड बेसिकली फोकस कर रहा है रूरल सेक्टर, रूरल एरियाज पर, और नाबार्ड इन्हीं के ऊपर प्रॉपरली वर्क कर रहा है. गवर्नमेंट ने इसीलिए नाबार्ड सेटअप किया है. नाबार्ड के अंदर आएगा रीजनल रूरल बैंक जो रूरल लेवल पे वर्क कर रहा है, बट मेन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ रीजनल रूरल बैंक इज ऑल्सो नाबार्ड. सो नाबार्ड इज अ डेवलपमेंट बैंक फोकसिंग प्राइमरली ऑन द रूरल सेक्टर ऑफ द कंट्री. जैसे अभी आपको समझ भी आया होगा कि नाबार्ड एक बैंक ही है, बैंकिंग की पूरी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है. मेन फोकस किस पर है? रूरल सेक्टर ऑफ इंडिया. It is in fact India's apex development bank. It is one of the most important institutions in the country. इंडिया का मेन एपेक्स या मेन बैंक है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बैंक है हमारी कंट्री का, मेजर रोल प्ले कर रहा है हमारी कंट्री के लिए. नाबार्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट. मेनली नाबार्ड किन चीजों के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है? फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज, कॉटेज इंडस्ट्रीज एंड एनी अदर सच विलेज और रूरल प्रोजेक्ट. स्मॉल इंडस्ट्रीज, कॉटेज इंडस्ट्रीज या अदर रूरल प्रोजेक्ट्स के ऊपर नाबार्ड मेनली वर्क या फोकस करता है. तो फिर से बताऊं, नाबार्ड मेनली रूरल एस्टेब्लिशमेंट के लिए बनाया गया है,
अपग्रेडेशन के लिए बनाया गया है एंड इट इज प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन रूरल एरिया ऑफ आवर कंट्री. नेक्स्ट, on which date it is established? NABARD is established on 12 July 1982. तो ये डेट हमें वैसे भी याद रहनी चाहिए. तो NABARD कब बना था? It is established on 12 July 1982. It had an initial capital क्या है इसकी? 100 crores. The bank is under the supervision of board of directors which the government of India will appoint. और बैंक को भी तो कोई सुपरवाइज करेगा, तो NABARD का जो सुपरवाइज करने वाले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट अपॉइंट करती है और वही NABARD के फंक्शंस को सुपरवाइज करते हैं. The headquarters of NABARD is in Mumbai, but it has many branches and regional divisions. मेन हेड ऑफिस इंडिया में NABARD का मुंबई में है, बट फिर भी इसकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं और रीजनल डिविजन्स हैं. NABARD is instrumental in the development and efficiency of current rural credit system. मेन रोल प्ले कर रहा है करंट रूरल क्रेडिट सिस्टम में NABARD. Over half the credit in the rural region comes from cooperative banks and regional rural banks. और हाफ या ज्यादा से ज्यादा जो रूरल पीपल को हेल्प हो रही है, क्रेडिट मिल रहा है, वो बेसिकली कोऑपरेटिव बैंक्स या रीजनल रूरल बैंक से आ रहा है. और NABARD क्या है? NABARD मेन हेड है इन रीजनल रूरल बैंक्स को सुपरवाइज करने के लिए. तो NABARD इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग एंड सुपरवाइजिंग द फंक्शनिंग ऑफ सच बैंक्स. सच बैंक्स मींस कोऑपरेटिव बैंक्स एंड रीजनल रूरल बैंक्स. कोऑपरेटिव बैंक्स भी अपना बहुत अच्छा और मेजर रोल प्ले करते हैं. और कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में अगर मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बात करूं तो कोऑपरेटिव बैंक बिफोर इंडिपेंडेंस 1969 के टाइम, इंडिपेंडेंस से पहले भी बहुत अच्छे से रोल प्ले कर रहा था. बिफोर इंडिपेंडेंस और आफ्टर इंडिपेंडेंस कोऑपरेटिव बैंक्स ने एग्रीकल्चर सेक्टर में अपना या रूरल पीपल्स के बेनिफिट के लिए बहुत अच्छा रोल प्ले किया है. और इन्होंने अपनी बहुत अच्छे से एक इमेज या ट्रस्ट क्रिएट कर लिया था इन रूरल रीजन. तो कोऑपरेटिव बैंक्स और रीजनल रूरल बैंक्स ये दोनों ही रूरल एरियाज के डेवलपमेंट के लिए स्पेशली बनाई गई बैंक्स हैं. रीजनल रूरल बैंक्स स्टेट में डिस्ट्रिक्ट के अंदर बनाई जाने वाली बैंक्स है, इसीलिए इनका नाम रीजनल रूरल बैंक्स होता है. अब NABARD जो है मेनली इन कोऑपरेटिव बैंक्स या रीजनल रूरल बैंक्स के सुपरवाइज करता है या इनकी फंक्शन को देखता है. ओवर द इयर्स NABARD हैज बीन परचेजिंग फॉर डेवलपमेंट इन द क्रेडिट स्कीम्स ऑफ रूरल पॉपुलेशन टू मीट देयर न्यू क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स. तो आज के टाइम में NABARD भी हर तरीके से रूरल पीपल्स की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए नई नई स्कीम्स बनाता है और हर तरीके से रूरल पीपल की हर तरीके की फैसिलिटीज उन्हें प्रोवाइड करना चाहता है. Other than meeting credit requirements of rural sector, सिर्फ क्रेडिट रिक्वायरमेंट ही रूरल सेक्टर की मीट नहीं करता. NABARD इसके अलावा भी कुछ रोल्स प्ले कर रहा है. NABARD इज ऑल्सो इंस्ट्रूमेंटल इन सोशल इनोवेशंस एंड प्रोजेक्ट्स फॉर रूरल एरियाज. It partners with various organizations for many innovative projects such as SHG. SHG is self-help groups. तो NABARD इसके अलावा भी कुछ इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स में वर्क करता है सच एज SHG बैंक लिंकिंग. SHG फिर से बता रही हूँ, इट इज सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप या सेल्फ हेल्प ग्रुप्स. इसके अलावा इनोवेटिव स्कीम्स हैं फॉर वाटर एंड सॉइल कंजर्वेशन के ऊपर भी NABARD वर्क कर रहा है. ओवर द लास्ट 3 decades the institution has gained goodwill and trust in the farmers and rural communities. तो NABARD को भी अच्छे से अपनी इमेज बना ली है रूरल एरियाज में, रूरल कम्युनिटीज में. नाउ पीपल्स आर नोइंग अबाउट NABARD and trusting on it. Then what are the main functions of NABARD? So NABARD mainly performs 3 kinds of roles. It is providing credit. It is for credit functions, development functions and supervisory functions. तो NABARD के functions 3 टाइप से डिवाइड हो गए. आप एग्जाम में आराम से लिख सकते हो इसके अंदर. पहला हम क्रेडिट फंक्शंस के पॉइंट्स को डिस्कस कर सकते हैं, फिर दूसरा हम डेवलपमेंट पार्ट ऑफ NABARD डिस्कस कर सकते हैं, एंड थर्ड इज सुपरवाइजरी फंक्शन. दीज ऑल आर द फंक्शंस ऑफ NABARD. So I have mentioned some points also in functions of NABARD. That is, first is to frame the policy of rural credit. तो मेनली रूरल क्रेडिट के लिए पॉलिसी फ्रेम करना बाय द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. NABARD development will itself provide finance and refinancing facilities to bank and regional rural banks. NABARD भी हेल्प करता है. लोग डायरेक्टली रीजनल रूरल बैंक्स के पास हेल्प के लिए जाते हैं, विलेज के पीपल्स, और रीजनल रूरल बैंक के पास अगर लिक्विडिटी नहीं है, कैश रिजर्व में नहीं है, कोई प्रॉब्लम है, तो रीजनल रूरल बैंक NABARD से हेल्प मांगता है.
तो नाबार्ड इसके रिफाइनेंस फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रेडिट पोटेंशियल एंड प्रिपरेशन ऑफ क्रेडिट प्लान्स फॉर ऑल डिस्ट्रिक्ट। आइडेंटिफाई करना कि क्रेडिट की क्या सिचुएशन चल रही है, किस किस एरियाज में, किस किस डिस्ट्रिक्ट में क्रेडिट की नीड्स हैं और उन्हें फुलफिल कैसे किया जाए। Next, it also helps all regional banks and institutes under its governance with preparation of their own credit plans. जितनी भी नाबार्ड के अंदर रीजनल बैंक्स आ रही हैं उन सब के लिए भी वो क्रेडिट प्लान एस्टेब्लिश करते हैं। Helps regional rural banks establish an agreement with state governments and other cooperative banks. रीजनल रूरल बैंक्स की नाबार्ड हर वक्त हर टाइम पे हेल्प करता है और यहाँ पर भी वो हेल्प कर रहा है कि एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, एग्रीमेंट एस्टेब्लिश कर रहे हैं विद स्टेट गवर्नमेंट्स। तो नाबार्ड हेल्प्स regional rural banks. Then it will also monitor the implementation of such plans and track their progress. अब plans ready हैं, उस पर वर्क हो रहा है, तो वो नाबार्ड में सुपरवाइज या मॉनिटर करेगा उन plans पे जो वर्क किस तरीके से हो रहा है और उनकी क्या प्रोग्रेस हुई। Help bank improve their MIS system, it is management information system। तो बैंक्स के MIS सिस्टम में हेल्प करता है, मॉडर्नाइज देयर टेक्नोलॉजीज और डेवलप ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए, इन सभी तरीके की चीजों में नाबार्ड अपना मेन रोल प्ले करता है। As per Banking Regulation Act 1949, NABARD has to conduct the inspection of regional rural banks and cooperative banks. Banking Regulation Act 1949 के हिसाब से नाबार्ड के पास सारी पावर्स है कि वो किसी भी टाइम वर्किंग या फंक्शनिंग ऑफ रीजनल आरआरबीज, रीजनल रूरल बैंक्स एंड कोऑपरेटिव बैंक्स की इंस्पेक्ट कर सकता है। मींस इंस्पेक्शन के नाबार्ड के पास पूरे राइट्स है, वो कभी भी आरआरबीज या कोऑपरेटिव बैंक्स की इंस्पेक्शन कर सकता है। Next, communicates and consults with RBI with matters such as issuing of licenses for new banks, opening of branches of rural banks. अब जब भी कभी कोई रूरल बैंक में ब्रांच ओपन हो रही है या किसी भी बैंक को नई बैंक खुल रही है, उसे लाइसेंस प्रोवाइड करना है, तो नाबार्ड डायरेक्टली नहीं प्रोवाइड कर सकता, उसके पास ये अथॉरिटी नहीं है, उसको इसके बारे में डायरेक्ट कम्युनिकेट करना पड़ेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, फिर ही उसके बाद वो उनको लाइसेंस इशू कर सकता है। From time to time, it will also inspect the investment portfolios of regional rural banks and state cooperative banks. इंस्पेक्शन में ही आ गया, टाइम टू टाइम रीजनल रूरल बैंक्स और कोऑपरेटिव बैंक्स की इंस्पेक्शन नाबार्ड करता है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। ये सारे के सारे हमने पॉइंट्स पढ़े नाबार्ड में, हमने नाबार्ड को डिफाइन किया, नाबार्ड क्या है। आज हमने अपने इस लेक्चर में 2 टॉपिक्स कंप्लीट किए सेकंड यूनिट के। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गए होंगे। If you still have any problems, then you can ask to me or write in the comment section. So thank you. Have a nice day.